Hello students. So today we are doing the poem Indian Weavers by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was born on 13 February 1879 in Hyderabad. She was an Indian political activist and a poet. She was an important figure in India's struggle for independence from colonial rule. Her work as a poet earned her the sobriquet Nightingale of India by Mahatma Gandhi. तो सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ। वो एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और उसके साथ साथ वो एक पोएट थी। फ्रीडम स्ट्रगल में उसका बड़ा योगदान था। उनके काम को देख के, उनके पोएम्स को देख के महात्मा गांधी ने उनको एक निकनेम दिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया करके। Let's start with the poem. So first of all, I will be giving you the summary. Okay. So Indian Weavers, which is written by Sarojini Naidu, is a short poem consisting of 3 stanzas having 4 lines. The poet talks about 3 types of dresses that the Indian weavers weave at 3 particular times of the day. Metaphorically, each time and dress weaved in that time symbolizes a particular stage of life. तो जो पोएम है इंडियन वीवर्स जो सरोजनी नायडू ने लिखा है, वो एक छोटी सी कविता है जिसमें 3 स्टैंजास है और हर एक स्टैंजा में 4 लाइन है। ठीक है, तो ये पोएट ने 3 टाइप के कपड़ों के बारे में बताया गया है जो इंडियन वीवर्स, जो भारतीय वीवर्स ने 3 टाइम, एक दिन के 3 टाइम में बनाया गया है और हर एक टाइम, हर एक ड्रेस एक लाइफ के एक पर्टिकुलर स्टेज को सिंबलाइज करता है। Let's start with the poem. Okay, first stanza. Weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a helicon wild, they weave the robes of a newborn child. In the first stanza, the poet asks the weavers why they are weaving clothes early in the morning. So the word gay, which is used in the poem, symbolizes beautiful and garment. The clothes are blue as the wing of a helicon wild. Now, helicon is the other name of a kingfisher. Okay, so ये एक short poem है. Okay, one second. पहले स्टैंजा में कवि ने वीवर्स को पूछा है वो इतनी सुबह क्यों कपड़े सिल रहे हैं। वो कपड़े बहुत सुंदर हैं और जो कपड़े हैं वो एक किंगफिशर के तरह ब्लू कलर का है। ओके, the wings of the kingfisher are bright blue in color. In addition, blue color also symbolizes loyalty. The blue color thus symbolizes something beautiful and precious. Hence, in this stanza, the clothes weaved by the weavers are quite special, and this is why the poet is curious to know about them. जो किंगफिशर का विंग्स है वो ब्राइट ब्लू कलर का है और ये कलर लॉयल्टी को सिंबलाइज करता है। ये कलर ऐसा दिखाता है कि ये चीज बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पोएट क्यूरियस है ये जानने के लिए कि ये कपड़ा किसके लिए बनाया जा रहा है। The Indian weavers reply, we weave the robes of a newborn child. That is, they are weaving the beautiful dress for a young one who had just come to the world. तो जो कपड़े सिल रहे हैं उन्होंने जवाब दिया कि ये हम एक नए बच्चे, एक न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए बना रहे हैं।
In this stanza, a number of images are used to describe the first stage of human life, like break of day, garments so gay, blue as the wings of a halcyon wild. This stage is full of happiness, freshness, hope, beauty, etc. There is no sorrow on this stage. पहले वाले स्टैंजा में हमें बचपन के बारे में बताता है और ये दिखाया जाता है कि इस स्टेज ऑफ लाइफ में कोई दुख नहीं है और सारे बच्चे खुशी खुशी रहते हैं। ये स्टैंजा को डिस्क्राइब करने के लिए पोएट ने बहुत सारे वर्ड्स का यूज किए, जैसे ब्रेक ऑफ डे, सुबह होते ही जो डॉन होता है वो टाइम, गारमेंट्स सो के, गारमेंट्स जो कपड़े जो बहुत रंगीन है, जो बहुत ब्यूटीफुल है, जो लोगों को आकर्षित करते हैं, एंड ब्लू इज द विंग्स ऑफ अ हेलिकॉन बर्ड। और जैसे मैंने बोला कि ब्लू लॉयल्टी को सिंबलाइज करता है, तो वही वर्ड्स यूज करते हुए पोएट ये स्टैंजा बताया जाता है। ओके, तो मैं एक और बार ये स्टैंजा रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनना। Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. तो सुबह सुबह पोएट देखता है कि वीवर्स कपड़े सिल रहे हैं, तो पोएट पूछता है कि तुम इतनी सुबह इतनी सुंदर कपड़ा क्यों सिल रहे हो, जो एक किंगफिशर की तरह ब्लू कलर का है और जो बहुत सुंदर है। तो वो वीवर्स बोलते हैं कि हम एक नए बच्चे के स्वागत में ये कपड़ा सिल रहे हैं। और इस स्टेज में, ये फर्स्ट स्टैंजा में लाइफ का सबसे पहला स्टेज लाइक चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है। ओके ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. Okay. In the second stanza, the poet again meets the Indian weavers. This time during the fall of a night. It probably refers to the evening or dusk time when the sun sets and darkness paves the way. Moreover, it is also the time during which most of the Indian marriages take place. तो सेकेंड स्टैंजा में कवि फिर से वो वीवर्स से मिलते हैं और अभी शाम का समय हो रहा है। ये लाइफ का वो टाइम है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी शादी की उम्र होती है। ओके ओके, the poet questions the weavers why they weave a garment so bright like the plumes of a peacock, purple and green. The garment at this time is bright and full of colors like feathers of a peacock, unlike the one color blue during the morning time. तो पोएट फिर तो कवि पूछता है कि आप ऐसा कपड़ा क्यों सिल रहे हो जो एक पीकॉक की तरह दिखता है। मतलब जो कपड़ा है वो पीकॉक के फेदर्स जैसा पर्पल एंड ब्लू है और उसमें एक नंबर ऑफ ब्राइटनेस है, ठीक है। और फर्स्ट स्टेज की तरह ये ब्लू नहीं है, मतलब एक ही कलर नहीं है, इसमें अलग अलग कलर है। ओके, The weavers reply that they weaved a marriage veil of a queen, thus referring to the second, or in other words, adult stage of the life. During this stage, humans are quite active. They love each other, get married, and quest for a better and prosperous life. तो वीवर्स बताता है कि वो एक दुल्हन के कपड़े सिल रहे हैं और ये लाइफ का सेकेंड स्टेज होता है। इस स्टेज में ह्यूमंस बहुत एक्टिव होता है और इस समय पे वो प्यार में पड़ते हैं, शादी हो जाती है और उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स होती है, ठीक है। द कलर्स पर्पल एंड ग्रीन symbolizes sorrow and happiness or struggle and ease in one's adult
in one's adult stage, and these all colors are ups and downs of life make the adulthood bright. जो पर्पल एंड ग्रीन कलर है वो खुशी और दुख दोनों को सिंबलाइज करता है. जैसे एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में ऊंच नीच होती है, स्ट्रगल्स आती है, उसकी सॉल्यूशन होती है, कभी कभी खुशियां आती है, कभी कभी सैडनेस आती है, वैसे ही ये पर्पल एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन के बारे में बताया जाता है. तो ये सेकेंड स्टेज है जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं. एक और बार रिपीट कर रही हूँ स्टैंजा. Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. तो कवि फिर से शाम को वो वीवर से मिलते हैं और उससे पूछते हैं क्यों तुम इतने मतलब शाम को ऐसा कपड़ा, ऐसा ब्राइट कलर का कपड़ा सिल रहे हो जो एक पीकॉक के पंख जैसा पर्पल एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है. तो वो वीवर्स बोलते हैं कि ये एक साड़ी का कपड़ा है जो वो एक क्यून के लिए, एक लड़की के लिए सिल रहे हैं, एक दुल्हन के लिए सिल रहे हैं. ये लाइफ का सेकेंड स्टेज के बारे में बताता है जब एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है और उसकी शादी की उम्र हो जाती है और उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी सैडनेस आ जाती है. ऑल राइट, ओके, मूविंग ऑन. दिस इज द लास्ट स्टैंजा. Weavers weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral sound. So, in the final stanza, the poet finds the weavers solemn and still. They are quite sorrowful, grieved, and silent. They are weaving something weird in the moonlight chill. That is at the dead of a night, like बहुत midnight के टाइम पे वो कुछ चिल रहे हैं. हाँ, तो हम इसमें देखते हैं कि जो वीवर्स है वो एकदम दुखी बैठे हैं, जैसे कि वो किसी के यादों में खोए हुए हैं. वो कुछ अलग सा बना रहे हैं रात में बैठ के और वो एकदम दुखी दुखी बैठे हैं. ओके, दुखी है, उनको बुरा लग रहा है किसी बात का, ऐसे मुंह बना के बैठे हैं. As the poet fails to figure out what it is and why they are sorrowful and silent, she asks them what are they weaving rather than why are they weaving. वो पोएट समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा है और वो लोग क्यों इतने दुखी बैठे हैं. तो वो पूछता है कि तुम क्या बना रहे हो. वो वीवर्स बोलता है कि वो एक श्रॉड बना रहे हैं, मतलब एक कपड़ा जो एक डेड पर्सन के ऊपर डाला जाता है. ओके, और इस स्टैंजा में, बाकी स्टैंजा में क्यों बना रहे हो पूछा, इसमें वो पूछता है कि तुम क्या बना रहे हो. ऑल राइट. Thus, the third and final stage is death, which is emotionless and lifeless, like a white cloud or feather. In this way, the life which begins with life, joy, hope, etc., ends with sorrow and grief. तो इस आखिरी स्टैंजा में कवि डेथ के बारे में बताता है जो एकदम इमोशनल है, किसी में कोई सैडनेस के अलावा किसी में कोई इमोशन नहीं होता, सब एकदम ग्रीफ में बैठे होते हैं, सब सन्नाटा में बैठे होते हैं. और जो लाइफ खुशी से स्टार्ट होती है, जो एक आशा की किरण से स्टार्ट होती है, उसका एंड होता है सॉरो और ग्रीफ में, दुखी होके खत्म हो जाती है लाइफ. ओके, सो एक और बार लास्ट स्टैंजा, फिर एक और बार पोएम समझा दूंगी. Weavers weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud,
we weave a dead man's funeral shroud. तो जब कवि उनके पास जाता है रात में, बहुत अंधेरा होता है, तो वो पूछता है कि तुम क्या बना रहे हो, ठीक है। तो वो पोएट बोलता है कि हम एक डेड मैन के फ्यूनरल के लिए एक श्रॉड बना रहे हैं, मतलब एक कपड़ा बना रहे हैं जो उसके मुंह पे रखा जाता है उसको ढकने के लिए, ओके। और उस टाइम पे बहुत अंधकारा छाया हुआ है और एकदम सन्नाटा है। ओके, सो दिस इज द पोएम. I will read the poem once again and explain at the end. Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a helicon wild, we weave the robes of a newborn child. Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. Weavers weaving solemn and still, why do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. ओके, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, यहाँ पे एक राइमिंग स्कीम यूज किया जा रहा है और वो राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी, ओके। अब राइमिंग स्कीम होता क्या है? तो राइमिंग स्कीम इज समथिंग विच, देखो अगर तुम नोटिस करोगे इस पोयम में, मैं फर्स्ट स्टैंजा के बारे में बताती हूँ. Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Day और gay दोनों सेम साउंड करते हैं, राइट? Blue as the wing of a helicon wild, we weave the robes of a newborn child. Wild child. तो इसे कहते हैं राइमिंग स्कीम. एक स्टैंजा में जितना राइम होता है एक वर्ड, उसके बेसिस पे हम राइमिंग स्कीम बनाते हैं. अब अगर हम नेक्स्ट ये देखें, weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? नाइट और ब्राइट मैचिंग हो रहा है और वो एक सेंटेंस को खत्म कर रहा है, वो एक लाइन को खत्म कर रहा है. Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. Green, queen, दोनों राइम कर रहा है. So this is basically what a rhyming scheme is. और हाँ, और फिर ये पोएम में एक डिस्कशन के बारे में बताया जाता है जो एक पोएट और एक वीवर के बीच बोला जाता है. पहले पोएट क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद लास्ट मतलब उसका आंसर देते हुए लास्ट लाइन में वीवर्स आंसर बताते हैं. ओके, सो इस पोएम में सरोजनी नायडू ने लाइफ के 3 स्टेजेस को समराइज किया है. पहला वाला अगर तुम नोटिस करोगे, इसमें 3 कलर्स के बारे में बताया था. फर्स्ट वाज ब्लू कलर, सेकंड वाज ग्रीन एंड पर्पल और थर्ड वाज व्हाइट. ओके, तो जर्नी, जो लाइफ का जर्नी होता है वो पहले ब्लू कलर से स्टार्ट होता है जिसका मतलब जॉय एंड हैप्पीनेस है. उसके बाद वो ग्रीन एंड पर्पल में जाता है, वो सेकंड स्टेज है. ओके, ग्रीन एंड पर्पल इज द सेकंड स्टेज. और इसमें लाइफ थोड़ा ज्यादा एक्टिव होता है फर्स्ट स्टेज के मुकाबले. इसमें खुशियां होती है, दुखी होते हैं लोग, इसमें स्ट्रगल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स निकलती है, उसका सॉल्यूशन निकलता है, दोस्ती होती है, प्यार होता है, वगैरह वगैरह. लास्ट स्टैंजा मतलब जो लास्ट में बोला गया, उसमें थर्ड कलर हम लोगों ने व्हाइट यूज किया. व्हाइट मीन्स एक पर्सन मरने के बाद, इफ यू हैव सीन, लोग व्हाइट ड्रेस पहनते हैं कुछ जगह में. ओके, सो व्हाइट सिंबलाइजेस दैट इमोशन जो है वो लाइफ से कनेक्टेड है, और जब एक इंसान मर जाता है वो इमोशंस उस इंसान के साथ खत्म हो जाती है. ओके, सो या दिस इज द पोएम. आई होप यू अंडरस्टूड.
अगर कोई डाउट्स है या क्वेरीज है मेरे को मैसेज करो. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू सॉल्व इट. ओके, थैंक यू. बाय.